to 5 minutes, and then you can start your session, doctor. Yeah, definitely. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah, Dr. Supriya, you can take it up. Yeah. Uh, Good morning, Good morning, everybody. Supriya. Yeah, yesterday we have learned about what is a Kohar therapy. I'm going to recap fast. Kohar is a name given by Mr. Pradeep Kohar, that it is a holistic treatment approach from head to toe. So it is a drugless mode of treatment, and it is based on the principles such that you should not, there is no need for taking any drugs and nor surgery is required. It is based on 4 pillars. Dr. Peter Adamo has given the concept of blood group diet. Dr. Linus Pauling has given the concept for this therapy for mineral supplements, so that any deficiency which causes any disease can be cured. Then third one was Dr. Vishwaswarup Roy Chaudhary, who had given fitness pillar, where by changing your diet, you can control your disease. And the fourth pillar was Ayurvedic nutrition, which we give a patient as a supplement. So this therapy is based on blood group diet. You have to boost the immunotherapy. Then third one is the natural cure, and it is modern medical science is also dependent, because we need pathological tests, CT scan, X-rays. For that purpose, we are taking help of modern medical science, but we are not using any drugs from the allopathy. So the benefit of this therapy is we cure this disease without medicine and surgery. Unless the patient comes in a very critical condition, then you have to opt for the modern allopathy side. It is a time-bound cure for the patient. And once you treat the patient, it is a lifetime permanent cure, because you are removing the root cause of that disease. This technique is very economical, because a single therapist is treating you. So there are in allopathy, we are using, we are taking help of many clinicians, like cardiology. Suppose any diabetic patient comes, then he has to take help of diabetologist also. Then when the complications comes, depending on the complications, he has to take help of nephrologist, then cardiologist, then hepatologist, depending on the complications. So here in this therapy, besides this homeopathy aspect, we are taking under one roof. We are taking we are involving acupressure, acupuncture, cupping therapy, nutrition specialist, then all other complementary aspects are covered. So by this, you give drugless module of therapy. And it is based on 4 pillars I just told you. And we have seen the advantages. So now, Dr. Afreen, can you go? Can you? I'm giving you, Dr. Minal. Hello. I can hear you. Dr. Supriya, Dr. I can hear you. Yes. 4 शाखाएं हैं. एक है Arrow Humanity Foundation, which is Dr. Supriya, let now the session be started by Dr. Afreen on her blood group. Yeah. So right now, Dr. Afreen will be taking the on the blood group diet, what we say as a first pillar, which is of Dr. Peter Adamo. Yeah, Dr. Afreen, you can. Yeah. Thank you, Meenal. Thank you, Dr. Supriya. See, myself, Dr. Afreen, I'm here to speak on a very beautiful thing. It is very beautiful. You were not knowing. Nobody knows till now. But it has been researched, studied, and scientifically proven. And it is with us since 1787. You know, in 1901, when
Dr. Lance Steiner, he he discovered the ABO system, blood group system, and through him we came to know that we have different blood groups. We are not all alike blood group wise. Somebody is A, somebody is B, somebody is AB, and somebody is O. And it depends yani what antigen is present in your red blood cell that gives you that type of blood group. Okay, suppose if A antigen is present on my red blood cell, I will be called A positive or A negative blood group. So that was the thing when he discovered. He was not knowing कि कोई और भी आगे आएगा who will be discovering, यानी उसके ऊपर से डाइट्स निकालेगा. तो बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी स्टडीज के बाद डॉक्टर पीटर जी एडामो, एक्चुअली उनके जो फादर थे उन्होंने स्टडी किया था इस पे ब्लड ग्रुप पे, बट उसको आगे बढ़ाया डॉक्टर पीटर जी एडामो ने और हमारे सामने लाया है ईट राइट फॉर योर ब्लड टाइप. उसके रूप में उन्होंने पूरा ब्लड ग्रुप का प्रेजेंटेशन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक पर्टिकुलर पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक जो भी ब्लड ग्रुप का है वो, और उसको क्या चीजें खाना चाहिए, क्या चीजें उसके लिए हार्मफुल है, उन्होंने पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अपनी बुक में. इसके अलावा उन्होंने ये तो फिनोटाइप डाइट हो गई जो हमारी ब्लड ग्रुप्स को डिसाइड करती है और उसकी डाइट देती है. उन्होंने जीनोटाइप डाइट पे भी लिखा है जो हमारी जेनेटिकली जो हमारे ब्लड ग्रुप्स बनते हैं यानी हो सकते हैं, उनके टाइप्स हो सकते हैं ब्लड ग्रुप के, उसके ऊपर से भी उन्होंने डाइट बनाई है. तो ये तो बहुत डीप का है, बट हम लोग एक सिंपल सी चीज फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर पीटर जी एडामो की कि ईट राइट फॉर योर ब्लड टाइप, यानी जिस तरह से कहते हैं विसे कि बीमारी को भी खाना लगता है. आप खा रहे हैं, आप हर चीज खा रहे हैं, आप हो सकता है आप कुछ ऐसी भी चीजें खा रहे हैं जो आपके ब्लड ग्रुप के लिए सूटेबल नहीं है, वो आपकी बॉडी में जाकर या तो वो जहर का काम कर रही है या आपको उसको खाने से कोई फायदा नहीं है. और आप लोग सब सुन पा रहे हैं मुझे? कोई एक प्लीज बोले. Yes, ma'am, continue. Yeah. So this was the theme, and he came out with blood eat right for your blood type. So basically there are 4 types of blood group. All of you know A group, B group, AB, and O. So A will be A positive or A negative. It depends on the presence of a protein. That RH is a protein which is present in your रेड सेल, तो उससे डिपेंड होता है जिनमें वो प्रेजेंट है दे आर पॉजिटिव और जिनमें वो प्रेजेंट नहीं है RH फैक्टर दे आर नेगेटिव. सो इट यहाँ ब्लड ग्रुप डाइट में इससे रिलेशन नहीं है कि आप ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है. हम लोग मायने देते हैं ए ग्रुप को, यानी वो पूरा ए ग्रुप कहलाएगा, फिर बी ग्रुप कहलाएगा, ए बी ग्रुप कहलाएगा और ओ ग्रुप कहलाएगा. ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, इन सब की हमको ज्यादा जरूरत वहां पड़ती है जहां कोई भी Ma'am, we are not able to hear your voice. Afreen, ma'am. Are you able to hear now? Yes, now I am able to hear. Okay. Please, thank you, ma'am. आपने मुझे वही किया है, बीच में बताया है. Otherwise, I would have gone far. Okay. तो यहाँ से जब स्टार्ट हुआ था तो हमारे लिए ब्लड ग्रुप्स जो हैं जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया उसका एक बहुत जबरदस्त यानी तो तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, जो चीजें हम जानते हुए भी नहीं जानते थे इतने सालों से. बट क्योंकि कोहर थेरेपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने पूरी इन चीजों को रिसर्च किया, स्टडी किया और हमारे सामने उन्होंने ये सारी चीजें लाकर, ये सिस्टम्स लाकर हमें उसके तरफ भी हमारा ध्यान खींचा है.
तो ये बहुत ही नॉन इन्वेजिव है ये, यानी इसमें कोई हमें किसी तरह का इन्वेजन करने की, बॉडी पे कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी प्रूवन है, और उसके हिसाब से अगर हम डाइट लेते हैं तो हम तो कोई बीमारी को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अगर हमें अंदेशा है कि ये चीज इसमें हो सकती है, तो हम इस ब्लड ग्रुप डाइट के जरिए बच्चों में, बड़ों में या एडल्ट्स में वो बीमारी को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और जो लोग बीमार हैं उनको ये डाइट देकर उनको जल्दी से रिकवर, यानी दे कैन रिकवर फास्ट with the help of this type of diet, and you come to know what is harmful for you and what is advantageous for your health. Okay, so accordingly, I would like to share my screen. Meenal, can I share? Am I able to share? Yes, yes, Or ma'am. You can share yeah, because you are a okay, co-host, na? You can yeah, share. okay, thank you. I'm not able to share, ma'am. Second, which chart do you want to share? That one only, na? A Yeah, and B, blood na? group Right? chart. Yes, yes. I will just share it. 1 second. Let Yeah. me see. 1 second. I'll share. I have got actually presentation with me, so that it will be easier to No, not tell about presentation. blood group. I'll just share. Can you see the screen now? Yeah, I can see. Yeah. You can see the screen now? Yes, yes. Can everybody see the screen? Yes, yes. Okay, okay. So now you can take it. But you have to remove this thing. Screen जो share का आपने जो board, white board आ रहा है, it is showing, है ना? Okay. That you have to remove. Okay. But can you see the screen, right? Yeah, I can see. Okay, done. Surely. Yeah. Thank you. See, this is an example in front of you. There is this diet is for A blood group and B blood group. Here it is written. So we have made presented in this such a way that it will be easier for all of you to understand. इसमें हमने उसको कुछ ऐसे भागों में डिवाइड किया है, जैसे जो हम खाने पीने में जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे कहिए, या जो हमारा लाइफस्टाइल है उस बेसिस पे कहिए, तो हमने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है. तो यू कैन सी यानी अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट ए ब्लड ग्रुप, तो ए ब्लड ग्रुप में जो फर्स्ट वाला जो ये पार्ट है, दैट इज अबाउट डेयरी प्रोडक्ट्स. तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पीटर जी एडामो, ए ब्लड ग्रुप कैन are not allowed to take milk or milk products and cottage cheese also. So milk and milk products में सभी आ गया, दूध और पूरा दूध यानी गाय का हो या बफेलो का हो, but they can have goat's milk. Okay, but goat's milk is nowadays not easy to found, तो इससे बेटर है कि they avoid milk. तो उन्होंने जब ये मिल्क, इसीलिए उन्होंने उसको कहा कि इट इज नॉट अलाउड. एंड उन्होंने कैसे कहा, क्या रिसर्च की कि हमें पता चला कि मिल्क इज नॉट अलाउड, मिल्क इज हार्मफुल टू देम, और इफ दे आर टेकिंग मिल्क इन एनी फॉर्म, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम इन एनी वे. कोई बोन हेल्थ या कोई ग्रोथ नहीं होगी उससे उनकी, उल्टा उनको नुकसान होगा. तो द फैक्ट वाज दैट कि हर जो चीज हम खाते हैं उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको लेक्टिन बोलते हैं. ये लेक्टिन जो प्रेजेंट रहता है सबके खाने में, हर खाने में, ऑलमोस्ट इन एवरी फूड इट इज प्रेजेंट देयर.
तो जब ये मिलता है हम लोग जब खाना खाते हैं, जब ये जाता है अंदर, तो ये इंटरैक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन होता है इसका बॉडी में साथ में। तो जो भी चीज हम खाते हैं वो केमिकली रिएक्शन होके वो चीजें कन्वर्ट होती है एनर्जी में। ओके, तो हम लोग तो 5 तरह की चीजें खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, आइदर कार्बोहाइड्रेट्स वी आर टेकिंग, आइदर फैट्स वी आर टेकिंग, आइदर शुगर, प्रोटीन्स वी आर टेकिंग, मिनरल्स और विटामिन। ये पांचों चीजों का मिश्रण खाते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हम एक ही में सिर्फ प्रोटीन है तो सिर्फ प्रोटीन ही खा रहे हैं। अगर आप जैसे मैंगो की बात करें तो उसमें सारे प्रोटीन्स हैं, फ्रूट की बात कर रही हूँ, यानी मैंगो ही एक ऐसा फल है जिसमें सारे प्रोटीन्स एंड विटामिन प्रेजेंट है, विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट है। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें वेजिटेबल्स में बहुत सारे विटामिन भी है, मिनरल्स भी है और उसमें प्रोटीन पार्ट भी है थोड़ा। बट अगर आप नॉनवेज की बात करें, जो नॉनवेज ईटर है तो उनको प्रोटीन्स बहुत अच्छा मिलता है, विटामिन बहुत अच्छे मिलते हैं, इस तरह से हम जानते हैं। बट जब ये जाते हैं, कुछ भी चीज जो भी हम खाते हैं उसमें एक लेक्टिन नाम का, देयर इज अ प्रोटीन नोन एज लेक्टिन, ये रिएक्ट करता है। तो अगर ब्लड ग्रुप के ए के जो जो भी लोग हैं इंडिविजुअल्स, इफ दे टेक मिल्क, तो ये लैक्टिन जाकर उनके ब्लड से नेगेटिव रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शंस ऐसे नहीं हुए हैं कि ये दे आर नॉट डेंजरस, दे आर नॉट डेडली, कि उससे किसी की डेथ हो जाए या कोई ऐसा अनटूवर्ड कुछ उनको एक्सपीरियंस हो, नो, नॉट एट ऑल। बट दे एक्ट एज अ स्लो पॉइजन इन योर बॉडी। धीरे 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 आपको फायदा तो नहीं होगा, बट दे विल डैमेज स्लोली, दे आर गोइंग टू डैमेज द सिस्टम जहां पे भी वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो बोन हेल्थ में तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे ए पॉजिटिव या ए ग्रुप के लोग हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है दूध पीने से। एसिडिटी, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि हमको एसिडिटी होती है, रम्बलिंग होती है पेट में, गैसेस फॉर्म होती है, हम हजम नहीं कर पाते हैं दूध को। तो इससे हमको पता चलता है कि ए जो ब्लड ग्रुप है, दे शुड नॉट हैव मिल्क इन देयर डाइट। इफ दे रिमूव दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग, तो उनको वो सारे फायदे मिलेंगे जो वो ये बोन हेल्थ के लिए वो दूसरी चीजें भी ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो मिल्क में ही उनको प्रोटीन कैल्शियम मिले। वो कैल्शियम अगर उनको लेना है तो और दूसरी चीजें भी है और दूसरे ऑप्शंस भी है। तो उनको अलाउड ग्रुप में आप जैसे देखेंगे कि दे आर अलाउड टू टेक योगर्ट, मोज़रेला, जो भी गोट का चीज है, गोट मिल्क, रिकोटा चीज, ये सब चीज, यानी दे कैन टेक मिल्क इन द फॉर्म ऑफ चीज, बट ये वाली चीज होना चाहिए तो उनको ज्यादा फायदा करेगी। तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली उनको मिल रहा है। इवन दे गेट इट फ्रॉम फ्रूट्स, बट फ्रूट्स में उनको ये ध्यान में रखना है कि ये वो फ्रूट्स ना हो जो उनके ब्लड ग्रुप को अलाउड नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है? किसी को प्लीज ना समझाओ तो दे कैन आस्क। Shall I go forward? मैं आगे जाऊं? Anybody, any questions? यहाँ पे किसी को समझ पे नहीं आया हो, किसी को पूछना हो? जितना आप इंटरेक्टिव करोगे दूसरों के लिए भी वो जवाब देता है। हाँ, बिकॉज इट सीम्स, यानी ऐसा हो जाता है कि एक टीचर बोल रही है और स्टूडेंट्स का काम है सुनना है, फिर टीचर जब बोलेगी कि हाथ उठाओ तो पूछेगी, है ना? ऐसा ना हो प्लीज। तो चलो अभी मैम मैं ही पूछ लेती हूँ। अभी जैसे बी पॉजिटिव है, या somebody is asking question. Yeah, please go ahead. When we say, ma'am, when we say that milk and the milk products are not allowed, so Okay. it means that curd as well as that cheese is also not allowed. Yes, that curd, yani it should be prepared from goat's milk now. That cheese, if it is prepared, then only it is allowed. Otherwise, Okay. But it should not be. But it should not be cow or yes, from cow or buffalo. yes, it will Okay. not benefit you. And ma'am, when we say mozzarella, mozzarella means mozzarella cheese that Cheese. is used in pizza.
चीज तो अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये जो डाइट्स हैं, ये जो बनी हुई डाइट्स हैं, ये पूरे यूएस बेस्ड हैं। ओके, इसमें जो इंडियन पार्ट है, इंडियन पार्ट मिक्स किया गया है बाद में इसमें रिसर्च करके। तो जो पीटर जी एरामो, ही इज नॉट फ्रॉम हेयर, ही इज ए यूएस साइंटिस्ट, है ना। तो उन्होंने वहाँ के जो खान पान है, वहाँ के जो लाइफ स्टाइल्स हैं, उसमें वो लोग फैटी चीजें जितने भी हैं बहुत यूज करते हैं, यू नो, हैमबर्गर्स, बर्गर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, चीज, सॉसेजेस दे आर यूजिंग। हमारे इंडियन पब्लिक है वो तो अभी स्टार्ट किया है इन्होंने यूज करना, जो अभी कुछ समय से जब होटल इंडस्ट्री और ये इंडस्ट्री जब आई है, सामने आई है, लोगों को फूड के बारे में पता चला है, नए नए टेस्ट के बारे में पता चला है, तभी हमने रिसर्च किया ना। तो ये चीजें कॉमन हो गई वहां से और यहाँ से, तब जाके हमने इसको इसमें प्रेजेंट किया है। ओके, तो उन्होंने तो पूरा ऑल ओवर एशिया और सब पूरा कवर किया था, ऑल ओवर वर्ल्ड। बट मेन उनका जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां के चीजें ज्यादा है, तो वो दे यूज चीज एंड ऑल दोज थिंग्स, वहां ज्यादा यूज होता है यूएस में। ओके, तो ये और कुछ है क्वेश्चन आपके? अच्छा मैम, अभी मैं पूछ लेती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, ताकि दूसरों को भी अंडरस्टैंडिंग एक थोड़ी तरीके से आ जावे। Yes. अभी जैसे आप बोलते हो कि यहाँ पे बी, अभी फॉर एन एग्जाम्पल आई टेक बी पॉजिटिव, ओके, बी पॉजिटिव में अगर मैं लेती हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल जैसे बनाना या ग्रेप्स या पपैया, क्रैनबेरीज, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, बट जब भी मैं ग्रेप्स खाती हूँ तो मेरे को कॉफ होता है। ओके, So being B positive also still I get a cough. So what should I do? Should I discontinue or should I continue? See, if you have cough or such symptoms, so please don't take grapes in the evening hours. Okay, after 6 you should not take fruits. This is the best, यानी हाँ, you can rely after 6 you should not eat fruits. And हमारा सिस्टम भी यही बोलता है कि फूड्स जो है हम शाम को ना ले। इवन बनाना, हम लोग बनाना भी मना करते हैं। बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं, पपीता यू कैन हैव, बिकॉज अगर पपीता जो है वो उसका कुछ अलग चीज है, वो ब्लड प्यूरिफायर भी है और उसके दूसरे बेनिफिट्स हैं, गरम फ्रूट है वो। ओके, बट बीइंग ग्रेप इट इज अ कोल्ड फ्रूट, यानी उसके बेनिफिट जरूर हैं, उसके बेनिफिट्स कैंसर पेशेंट्स में बहुत ज्यादा है। ओके, कैंसर या ट्यूमर पेशेंट्स, क्योंकि उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं ग्रेप्स में, और उनमें एसिड्स भी होते हैं। बट ये अगर इस तरह की ठंडी चीजें, क्योंकि ये अक्सर ठंडे उसमें आते हैं, ये फल, ग्रेप्स हो गए, पोमीग्रेनेट हो गए, या आप है ना ऐसे चलिए, तो इनको आप इवनिंग में मत लीजिए। ओके, जैसे योगर्ट का भी मेरा वही हाल है, इफ इन केस आई एम जस्ट टेकिंग इट सो दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, हाँ, बिकॉज ताकि आप लोगों को मालूम पड़ेगा ये क्वेश्चंस मैं क्यों पूछ रही हूँ। यस मीनल, दीज आर ऑल हेल्पफुल क्वेश्चंस, और सबको इसी तरह से, क्योंकि हम जब लेक्चर लेते हैं तो हम अपने तौर पे लेते हैं। ओके, बट इट इज नॉट एबल, यानी एक एक से पूछना पॉसिबल नहीं है कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आई, आपको क्या चीज समझ में आई, है ना। बट मैम, आई वांट टू आस्क अ जनरल क्वेश्चन कि जो मीट में, चिकन मीट में जो कर्ड डालते हैं, as per Ayurveda it is not advisable, correct? Okay, curd yes. and non-veg. So what is your opinion? Because lot of like chef and all this thing show that they are putting curd in the non-veg meals. So how it is like? Actually curd is used for marination. Okay, मैरिनेट करने के लिए वो लोग उसको यूज करते हैं या पकाते हैं। तो जब क्या होता है, एक तो टेस्ट चेंज होता है, प्लस वहां पे एक बहुत सारे लोग यानी कुक नहीं करते ठीक से मीट को। अभी हम लोगों के पास मीट्स के बहुत सारे डिशेस है जहाँ हम उसको सिर्फ ओवन में बेक कर लेते हैं, पकाते हैं, रोस्ट करते हैं, है ना। दे आर नॉट प्रॉपरली कुक्ड। जहाँ आप प्रॉपरली कुक करते हैं तो वो दही उसमें मिल जाता है। ओके, बट अगर हम देखें, अगर हम ब्लड ग्रुप वाइज अगर देखें कि नहीं भाई बी पॉजिटिव है, कर्ड इज अलाउड, बट कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे कर्ड इज नॉट अलाउड, मिल्क
in any form is not allowed. हम्म Okay, तो अगर आप A blood group या AB blood group ले तो milk is not allowed in any form. Okay, तो any form curd भी एक form है. तो अगर ये not allowed, तो curd they cannot use then. मैरिनेशन में भी या किसी भी तरह से, या उनको अगर कहा जाए कि बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं कर्ड की, अलग अलग डिशेस है कर्ड से जो बनाई जाती है ना, तो यू माइट बी नोइंग देम. तो ये लोग शौकीन होते हैं कि कर्ड इवन सलाद के तौर पे भी कर्ड यूज किया जाता है. तो इफ वी नो बाय एनी दिस ब्लड ग्रुप डाइट दैट कर्ड इज नॉट अलाउड इन एनी फॉर्म, दे शुड नॉट यूज इट. सो बाय दिस योगर्ट जो बेनिफिशियल लिखा है, you are meaning that curd only na, or yogurt only? कर्ड इज अनदर नेम ऑफ योगर्ट, यानी बट वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है. नहीं, जहाँ जहाँ आपने योगर्ट लिखा है यहाँ पे, हाँ, तो उसको हम लोग कर्ड कंसिडर कर सकते हैं ना बेनिफिशियल में? बिल्कुल कर्ड यानी योगर्ट का ही रूप है, तो कर्ड आप उसमें कंसिडर कर लो. एंड रिगार्डिंग फ्रूट्स आई वांट टू आस्क कि whether it should be taken like after meals or before meals? It should be taken after meals. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री है वो, कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, तो आप उसको आफ्टर फूड ले तो बेटर है. बट नाश्ते में ऐसा होता है अक्सर हम लोग भी रिकमेंड की, जैसे आपको हाई प्रोटीन या फाइबर डाइट देना है तो बनाना यू कैन हैव, वो भी आप मिल्क के साथ लीजिए. जैसे बहुत थिन लोग हैं, बहुत पतले हैं, बनाना का काम मोटा करना नहीं है प्लीज. बहुत सारे लोग यानी इस चीज में रहते कि बनाना खाने से मोटे हो जाते हैं. नो, बनाना इज अ फाइबरस फूड, वो आपको फिलिंग देता है बॉडी में. हाँ, वो बिल्कुल भी मोटा नहीं करता है. बट आप उसको जिस फॉर्म में ले रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपने उसको किस फॉर्म में लिया था, तब आपको ये फर्क पड़ा है. तो अगर मैं दूध और बनाना शेक की बात करूं विथ क्रीम एंड ऑल दोस थिंग्स, तो डेफिनेटली आपको फैट भी मिल रहा है उसमें, है ना. बट हम वी डू यूज इट फॉर यानी थिन पीपल, जो लोग लीन एंड थिन है, जिनको जल्दी से यानी जो दुबले हैं, जल्द कुछ भी खा लेते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, तो वी कैन यूज दैट शेक देयर, बनाना शेक, बनाना मिल्क शेक इन द अर्ली मॉर्निंग, इन द अर्ली आवर्स. सो उस तरह से आप खा रहे हैं फ्रूट्स तो बेटर. बट हम लोग जब हमारे इसमें डॉक्टर उमेश, देयर इज वन थिंग नोन एज पावर डाइट. ओके, पावर डाइट, एंड देयर इज वन थिंग नोन एज सुपर पावर डाइट. उसमें सुपर पावर डाइट में एक मोनो डाइट है जहां सिर्फ आपको जूस का ही सेवन करना है. ओके, एंड इन पावर डाइट टू वी रिकमेंड यू टू ईट मोर ऑफ सैलड्स. ओके, रॉ वेजिटेबल्स, या वो सैलड्स रॉ फ्रूट्स का भी हो सकता है. एकदम रॉ की हाफ कुक? रॉ मीन्स यानी रॉ वेजिटेबल्स हो गए तो आपके ये सब आ गए ना उसमें, कैरेट्स. नहीं, एकदम रॉ की हाफ कुक? No, half cook for those people who cannot chew, है ना. Because chewing is the only thing, है ना. तो अगर जो लोग नहीं खा सकते, ओल्ड में है, तो you can mash them and give them, okay, by boiling. या कुछ लोग उसको डायरेक्ट मिक्सर में उसको पूरा ब्लेंड कर देते हैं and then they use it. Okay. जहाँ chewing is the problem. Otherwise, you should use them raw. प्रॉपरली, यानी उनको अच्छे से क्लीन कीजिए, एंड देन यू कैन हैव अ पूरा बोल ऑफ सलाद, और यू कैन हैव अ बोल ऑफ फ्रूट सैलेड. देन ओनली यू कैन ईट लाइक दिस, बट अदरवाइज यू शुड ईट फ्रूट्स आफ्टर फूड. ओके, बिकॉज फ्रूट्स कंटेन एसिड्स. फ्रूट्स हैव एसिड्स इन देम, तो वो दूसरी चीज आपको दे सकता है, थोड़ा सा एसिडिटी, फिलिंग. और किसी को अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो जला नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं करेगा, है ना. तो बेटर टू टेक, हाँ, तो उसको बाद में आप लीजिए तो अच्छा है, खाना भी हजम होता है. So in the milk it is written, or dairy products, so whether it is general that we should avoid buffalo, all things, and we should go for goat and goat, you are saying, like the general. You can, so in general you should avoid you should avoid this thing, milk in any form. But if you get goat's milk, because it is not easier to find na goat's milk,
है ना? We don't have goat farms और सबके घर पे तो नहीं है. For all blood groups, ना? Yes, Goat. for all, not it is not for all blood groups. It is for A blood group. है ना? A blood group. Every blood group has a particular thing B in also there. written, ना? B also written goat, cheese and milk. हाँ, but यहाँ पे आइसक्रीम है. Goat B positive blood group में आइसक्रीम है which is not allowed. Otherwise, milk is allowed. You can Milk see is the allowed. list. Okay. This And is for the thing. O blood group and ABO. Dr. Umesh, 1 second. I'll just tell you. If in case today you have an allergic to milk, though it is beneficial for you to have, but clinically, madam, yeah, right? We cannot have them, na? Yes. There are also clinical reasons for it. If in case there's a concern, right? Definitely. And if you are suffering from hypertension, so you need to take things which are low, which will help you in lowering your cholesterol too, because hypertension is always related to this thing. Cholesterol levels are also high. You have to keep a check na on that thing. If at all it is not high भी नहीं है, तो you have to keep a check कि cholesterol ना बढ़े साथ साथ में. Okay? Because साथ में क्या होता है, जिसको नहीं भी है ब्लड ग्रुप अर्ली स्टेजेस में, जो चांसेस है कि उसको सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो. सिस्टेमिक हाइपरटेंशन मीन्स वो एज, एक प्रॉपर एज के बाद वो किसी को भी हो सकता है. सिस्टमिक, वो सिस्टमिक है. और सिस्टम से कैसे होता है, जैसे यू आर नोइंग अबाउट अथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. तो ये तो एक एज में जाकर होता ही है सबको हार्डनिंग. आप देखते हैं हमारे घर में जो भी बड़े बूढ़े, उनकी जो वेन्स है या नसें पूरे है, वो सब वेसल्स ऊपर दिखते हैं, है ना, स्किन से ऊपर ज्यादा दिखते हैं और बहुत प्रोमिनेंट दिखते हैं. व्हाई इट इज देयर, क्योंकि इस टाइम पे वो सारे हार्डन्ड हो जाते हैं, सारे प्रोमिनेंट हो जाते हैं. और वो उनको टच भी करो तो वो जो फील रहता है हार्ड फील रहता है, नॉट यानी सॉफ्ट सा नहीं रहता है. तो ये अथेरोस्क्लेरोसिस कोई भी किसी को भी हो सकता है. इसके लिए कोई यानी प्री डिस्पोजिंग कोई फैक्टर नहीं है. बट हाँ, जो लोग हम लोग ब्लड ग्रुप से ये जान सकते हैं कि किसको ये ज्यादा होने के चांसेस है, so that we can avoid. Yeah, and regarding milk, there is one milk, A2 milk. So, what is the opinion on that A2 milk? Actually, I am not knowing what is this A2 milk. That is one cow, na, like cow breed who gives A2 milk. So what is the advantage of this thing? So basically, what we get the milk in the market, it is from the A1 breed of cow, correct? Okay. So there is one A2 breed of cow also, which is more like, you can say, like feasible in the human bodies, and it is not creating toxins in the human body. Can I intervene? Yes, Dr. Sona. Okay. Yes, Mr. Umesh, whatever he's saying, see, A2 is a brand, okay, which promotes this milk. जो आप बता रहे हो ना, इसमें definitely 80% casein होता है, and they say that they are extracting this milk from good breeds of cow. तो ये A2 जो आप बता रहे हो ना, ये इसके क्वालिटीज को ऐसा फीचर करके बताया हुआ है कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसका मिल्क, उसका घी काफी आयुर्वेदिक है और वो अच्छे ब्रीड से हैं. सो जैसे कि हम बाकी की चीजें देखते हैं, जैसे गोवर्धन मिल्क है या, तो वैसे A2 इज जस्ट अ ब्रांड वेयर दे क्या बोलते हैं, दे enhance more कि I mean they emphasize more कि ये जो मिल्क है ये अच्छे ब्रीडिंग वाले काउज से है, जो आयुर्वेदा बहुत प्रमोट करती है. There is some name also of such cows. I think if Umesh, you know, because you are an Ayurvedic practitioner, तो ये cows का कुछ बोलते भी हैं इनके जो breeds को. They are actually the rural cows. तो ये उनका है. Yes, it promotes digestion. Those who can afford it, because it's around 95 to 100 rupees liter. तो इसमें बहुत अच्छे forms of A1, A2, beta casein होते हैं. And I have heard आजकल बहुत ज़्यादा, हाँ, the breed of the cow is called Gir cow. Gir cow, right, Umesh? अगर आपको Yeah, it's okay, but I was just curious on the blood group scenario.
Like नहीं, whether it is जब दूध allowed ही नहीं है, when the people who are practicing blood group diet are saying no to milk, so that doesn't mean whichever breed the cow is. We are not here to discuss on the breedings or the adulterations in the milks. We are here that if the milk is not permitted for your blood group, so whatever form it is or whatever breed of the cow it is not permitted. That's what the discussion is over here. है ना, Dr. Afreen and Dr. Meenal, am I right? Very true. Very true. Yes, See, yes, milk definitely. can be even in the form of almond milk they can have. It is not that no. Almond milk is also available. Coconut milk is available. Soya milk is available. Why we are restricting to cow and buffalo milk? When it is said no, means there is something which will cause us a disease. मैंने ये सवाल इसके लिए purposely पूछा milk को लेके क्योंकि hello? Hello? Yes, we can hear you. Umesh ji, we आगे जाते हैं because the time is running. Yeah. Hello? So shall I continue then? Yes, madam. I yes, just want to Afreen finish. madam, please continue because it's already taken a lot of time. Yeah. So this is the way we decide what to give and what not to give, and it is very beneficial in many ways. You need to reconsider the diet because when you are having some clinical condition like diabetes, like some kidney problems, hypertension, so somewhere you have to modify this thing, this blood group diet, because कुछ ingredients हो सकते हैं कि जो आपको उस particular condition में not allowed है और आप उसको लेने लगे Ability ब्लड of a ग्रुप person. यस कि नहीं है बंदे का अगर metabolism is not high, what will you do to take milk? Not suggested, no? Yeah, Dr. Afreen, you can continue now. Yeah, this is the importance of blood group diet. So you can take help of this diet to treat your patients. And see, just please remember कि you have to somewhere you have to modify according to the condition of the patient. So if you know कि patient is of diabetes, तो आप उसको कोई ऐसी चीज नहीं देंगे कि जिससे उसकी डायबिटीज और इंक्रीज हो जाए, उसके रेट्स और इंक्रीज हो जाए. ओके, शुगर लेवल्स वहां आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है और वो उसके लिए हम लोग है भी, आप लोग भी खुद कर सकते हैं, आप लोग हमारी हेल्प भी ले सकते हैं. वी आर देयर टू हेल्प. One more question. Yes. See, if the customers are from Rajasthan desert area, so if the goat are not available and the camel's milk is mostly used, so it is preferable, na? We have already told you कि cow and buffalo's milk and this milk and that milk. So milk is not allowed, means milk is not allowed. Goat's No. milk हमने कह दिया है, अगर जहाँ goats नहीं है वहाँ camel है तो they can have camel's milk. They can have. But if they avoid it, it is better because milk हमने allow ही नहीं किया है उस group में. No, but then what the children will drink, like if they don't have the goat? See sir, there are many things nowadays. जैसे कि अभी मैडम ने कोकोनट मिल्क की बात की, उसका भी दूध आता है ना, कोकोनट का भी वो भी आता है, आलमंड मिल्क आता है. नो नीड कि अभी आपको आलमंड मिल्क हर कोई परचेज नहीं करेगा. कोकोनट मिल्क दे कैन हैव, या मिल्क के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को दी जा सकती है. Madam, even soya milk is available now. Yes, सोया मिल्क तो हमेशा से मिल रहा है. कब से मिल रहा है वो? आई थिंक सो जब मैं छोटी थी तो. I don't understand why people want to stick only to cow and buffalo milk. Again, Dr. Umesh, child can drink goat milk or can have soya milk. I know my own family member has a child जहाँ पे उसको एलर्जी हुई थी. When he was hardly 3 months, डॉक्टर ने मना किया था हमको milk. We gave him soya. How does it matter? जब तक आपके बॉडी में मिल्क जा रहा है, और जरूरी नहीं है कि बच्चों को मिल्क देना भी इतना इम्पोर्टेंट है. I understand the best is breastfeed, which is being given to the child when he is born for 9 months. के अलावा जो मेन सबसे लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होता है वो बहुत सबसे हेल्दी है. उसके बाद अगर बच्चों को आदत है ना है, there are other variations of milk too.
Yeah. Yeah, Correct. Dr. Afrin, you can continue now. Yeah. Yes. So, Dr. Afrin, you can take it. Yeah. yeah, the thing is that we should help people this way. Okay. My concept was only to make you understand that this thing is not allowed, this is allowed. So you can have the blood group guide chart from Dr. Meenal or Dr. Supriya. They will be providing you. You can go through it and you can help people. You can help yourself, you can help your family and your people too. Okay? Yeah. Be sure to follow these rules, these guidelines because they are very necessary and we were not doing it, and it is thanks to hats off to Dr. Peter G. Adamo who introduced this thing, and thanks to cohort therapy that they have made such thing possible. Okay? Miss Dr. Meenal? Yeah, please keep the mute mics in mute, please. Doctor, we can announce the training also, which we are going to be having the paid training. Yeah. Dr. Meenal, please do announce it. Okay. Dr. Afrin, Dr. Amreen, and my name is Meenal Kumar, Dr. Meenal Kumar. She is not a doctor. She's a psychotherapist, not a doctor. Yeah. Okay, sorry. Okay. So we three are coming up with a paid training, which is scheduling on 16th of June. Okay. The charges for the paid training 2,500. You being a partner, you all will be paying 50%. That is 1,250. And this training will be on mind, diet, remedial for the disabled children with a disability. What we talk about. Special need children special need children and normal kids too, because we have prepared the schedule will be such because of this lockdown all children they are at home, and they are all panicked and they are tense too, and with them the mothers are also suffering. So the guidelines will be for parents and kids, both of them, and for special need children too. We are guiding them. We would like to help them through our techniques and our medications, natural medications. We would like to help this way. So we are suggesting them so many means, and speech therapy is there, all those therapies which are helpful to such people, such kids, and for mothers, the relaxation techniques and how they can deal with this situation and their kids. तो हमने उसी तरह से ये वेबिनार हमने प्लान किया हुआ है, एंड प्लीज आपके कोई भी आपके एक्वेंटेंस में जानकारी में ऐसे बच्चे या ऐसे पेरेंट्स हो, उनको भी आप उसमें रजिस्टर करवाइए और आप लोग भी इसका फायदा, आप बीइंग एन एसोसिएट और हमारे साथ पार्टनर्स हैं आप, तो यू कैन ज्वाइन इट. अगर आपके कोई पार्टिसिपेंट्स है तो यू कैन ज्वाइन इट फॉर फ्री, otherwise you have to pay the half money for registration. Okay, and you can also be a part of it. You can learn other things too, कि हम कोहर थेरेपी है वो कहाँ कहाँ काम कर सकती है. इट इज नॉट लिमिटेड. जब हम आपसे कहते हैं कि हम हेड से लेके फुट तक की बीमारी का हम लोग इलाज कर रहे हैं, तो उसमें वो चीजें भी आ जाती है. तो इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं थेरेपी का. एक इसी तरह का एस्पेक्ट्स हम लेके आए हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए. Yeah, Dr. Meenal, you can continue now. Yeah. So, is this concept clear? Thank you, Dr. Afrin, for your session. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, Dr. Supriya. Now let us take on the further ahead with the counseling. Yesterday we had tried to fill the form. Just open. I have already sent to you. How many people of you have tried to fill the form? Dr. Supriya, I'll share one form which is being received to me. I don't want to name a person. It is a case where he sent it. Okay. Person having with multiple diseases. So let us take up that case. I will share the screen. Okay. And then we can see, though she is not put in counseling form, जो हमारा counseling form में है, but उन्हें लिख के दिया है.
ओके, सो एटलीस्ट हमको एक जिद आ जाएगी क्यों, और कुछ भी हम डिस्कस कर सकते हैं उस। आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन, 1 सेकेंड। कैन एवरीबॉडी सी स्क्रीन? सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes. Now let us discuss this case. Okay. जो पैरामीटर्स उन्होंने लिया है इम्पोर्टेंट जो है, नेम, जेंडर फीमेल, बाद में शी इज नॉट पुट द एस्टिमेशन टाइम क्योंकि उनको पता नहीं है, इसके लिए डेट उन्होंने डाली नहीं है। एज अभी जैसे इनकी एज है 57, वेट इज 65, मीन्स शी इज अ नॉर्मल वेज पर्सन। यहाँ पे इनकी हाइट जो है 5.2 है। If I see now with a weight and height, she is little bit on a healthier side, face side में। इनका जो ब्लड है B पॉजिटिव है। इनको वीकनेस बहुत है, जॉइंट है, ऑफ एंड ऑन है, डायबिटिक है since past 5 years, हाइपरटेंशन है 10 years, हाइपोथायरायडिज्म है 20 इयर्स से। और जो इनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो चल रही है GP2 इलेक्ट्रोक्सिन, बट इसमें इन्होंने खाली ये नहीं लिखा है कि ये कितने डोसेजेस ले रहे हैं। वी नीड टू नो, यहाँ पे हमको डोसेजेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर डोसेजेस नहीं है तो आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि पेशेंट 25 mg ले रहा है या 50 mg ले रहा है या 1000 mg ले रहा है। सो हियर द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अ थेरेपिस्ट becomes to know what is the dosage of the tablets is he taking it. One second parameter, जैसे ये डायबिटिक है तो हमें इनकी डायबिटिक रिपोर्ट जरूरी मालूम होने चाहिए, लेटेस्ट रिपोर्ट। अभी इनको हाइपरटेंशन है और हाइपोथायराइड है, तो इनकी जो हाइपोथायराइड की जो रिपोर्ट्स है हमारे लिए वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर करती है यहाँ पे। So this 3 reports is a need for understanding the patient more. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? समझो आपको हाइपो में कहाँ पे हाई दिखा है तो यू विल मार्क हैज हाई, आप लिखोगे ब्रैकेट में। अभी मैं आपको दूसरा फॉर्म शेयर करती हूँ जिसमें वो डिटेलिंग हमने लिखी हुई है। दिस वाज एन एग्जांपल, ओके। आई विल शेयर यू विथ यू द अदर वन वेयर इट हैज गॉट मोर डिटेलिंग। One second. ओके अभी ये दूसरा केस देखिए, हाउ द डीलिंग हैज बीन पुट। सो अभी इस गायनेक का प्रॉब्लम था, इन्होंने 2018 में कंसल्ट किया था, तभी इन्होंने होम्योपैथी मेडिसिन ली थी। सो यू हैव टू पुट ईच एंड एवरी पैरामीटर। का जो इशू था, शी हैड अ बल्जी यूट्रस, ओवेरियन सिस्ट, recently menopausal issue, means closing of my periods जो हमारे होते हैं, it is off and on, so that is why she has told me the latest report। जो उसकी पहले की रिपोर्ट में जो था वो लिखा है हमने। इन्होंने जो
मेडिसिन ली थी, सप्लीमेंट्स, अनदर टाइप्स ऑफ मेडिसिन जो उन्होंने सपोर्ट करके ली थी, होम्योपैथ ली थी, तो वी हैड रिटर्न दैट. शी हैड टेकन मुद्रा ट्रीटमेंट फ्रॉम मिस्टर चंद्रकांत फॉर थायराइड बिकॉज शी वाज अ हाइपोथायराइड पेशेंट, तो वो भी उसका लिखा हुआ है. अब उसको हार्मोनल चेंजेस हो रही है, सो वी हैव रिटर्न दैट आल्सो. और अभी ये एक कैप्सूल ले रही है, टेकिंग मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल, एंड दैट इज ओनली वन. प्लस जो इनकी रीसेंट रिपोर्ट थी जनवरी की, जहां जहां पे लो है, जहां जहां पे हाई है, तो आई नोटेड डाउन ईच एंड एवरी पैरामीटर. हेमोग्लोबिन लो, पीसीबी लो, एमसीबी लो. So whenever it is low or high, it is high. मीनल मैडम, we can't hear you. हाँ जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही. मेरी आवाज कट के आ रही है. हाँ जी. Okay, can you repeat? Hello. There is some disturbance. Some disturbance नहीं, there is some voice which is coming behind. Okay, now comes here. The voice is gone. अभी आपने ये देखा, इनका जो अल्ट्रासोनिक किया गया था उसमें माइल्डली बल्की यूट्रस 3. सिस्ट जो इनकी साइज है, सिस्ट की साइज है 3.8 into 2.8 सेंटीमीटर्स. ओवेरियन में, राइट ओवेरियन में है. इनका पेप्समेयर किया गया था. पेप्समेयर में फॉर अ कैंसर इट वाज नेगेटिव, बट देयर वाज एन इन्फ्लेमेशन स्मीयर व्हिच इज सीन. मतलब कोई इरप्शन जो हो जाता है, जैसे हम खराश करते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन पड़ जाती है, तो वैसे वो इन्फ्लेमेशन है. अभी मेरे को ये बताओ, अभी आपने ब्लड ग्रुप के बारे में सीखा, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा, वी विल मेक द पेशेंट टेक ब्लड ग्रुप डाइट. How crucial, how important. Now we have Dr. Sona, can you talk? सॉरी मैडम, आई कुडंट हियर यू. बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है वॉइस में. आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी. क्या बता रहे हैं? अभी जैसे मैंने ये केस को दिखाया है, तो मैंने बोला जो हमारा फर्स्ट थिंग है, वी विल स्टार्ट ऑन दी blood group diet with this patient. Okay, correct. हाँ. So now you talk about the blood group from your perspective. How important will be in this role with this patient? Yeah, can I see the slide that you were just sharing about the patient? Yes, I will surely. या तो मैं दूसरी जो मेरे को किसी ने भेजा है, मैं उनका ही आपको स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ. ठीक है, कोई बात नहीं. कोई भी केस आप बता दीजिए ब्लड ग्रुप के हिसाब से. आपको अगर ओ पॉजिटिव है. मैडम, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है. एक्चुअली आई डोंट नो इट इज ऑन माय एंड और व्हाट, बट फ्लक्चुएशंस हैं. हाँ, तो अभी ये मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर दी है. इनका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है. So let us talk about this patient now. Okay? Okay. Yeah. अच्छा, जैसे कि आपने यहाँ पे इस पेशेंट का जॉइंट पेन है and she is suffering from diabetes from 5 years. I am audible? Am I audible? Yes, yes. Okay. So diabetes है, hypertension दिख रहा है, hypothyroidism है 20 सालों से, and she is on allopathic medications. उसकी जो medicines हैं, I think one must be Glimpride, right? One must be वो है. Eltroxin must be for thyroid, and I am sorry, I just cannot read in between the handwritings. GP, हाँ, that Glimpride is what GP 2 है. हाँ. Glimpride है और Electroxin 100 है. हाँ, Eltroxin है वो. Yeah, so she's taking taking for thyroid. I'm sorry, your screen is gone. Yeah, hypertension की भी दवाइयाँ उनकी चालू है. Okay, so
अगर हम इस पेशेंट को देखें तो मल्टीपल डिजीज है, शी इज हैविंग मल्टीपल सफरिंग्स। ओके, तो अगर हम इनका ब्लड ग्रुप देखें ओ पॉजिटिव, कैन वी हैव द ब्लड ग्रुप चार्ट आल्सो? Yes. I'll just share. तो जैसे कि हमने देखा Yes, the blood Yeah. group chart with O positive is Yeah. Yeah, Okay. madam. Yes. अब जो इनका O positive है उस हिसाब से in the yellow column we can see the foods are not allowed and in the white column the foods are allowed. तो जैसे कि इनको goat milk, soy milk is allowed. So always focus on the things that are allowed when you are suggesting a blood group diet, ताकि आपके लिए meal planning उनका easy हो जाए। जॉइंट पेन के लिए उनके लिए जो भी फाइब्रस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो दे आर ब्लैक आई पी, मतलब काला चना या चौली जिसको हम कहते हैं, वो है। मैडम लिटिल बिट इफ यू कैन ओनली कीप द ओ पॉजिटिव डाइट। O1 you want? Yeah. Here it is. हाँ, so if you can see whatever is allowed in this, if we focus only on that fruits, vegetables, I mean being a food consultant I would say go according to diseases। जैसे हमको पहले पता है कि जॉइंट पेन के लिए जितने भी गैस प्रोड्यूसिंग, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग फूड्स हैं उनको अवॉइड करने होते हैं। डायबिटीज के लिए डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंड्यूस करके सिंपल कार्ब्स अवॉइड करने होते हैं। हाइपरटेंशन के लिए हमारा सोडियम लेवल्स लो होना चाहिए, और थायराइड के लिए जितने हमारे थायरोक्सिन प्रोड्यूसिंग एडिबल पोर्शंस हैं उनको ये करना चाहिए। जैसे कि थायराइड में कोरिएंडर इज वेरी गुड, जितना हम उसको कोरिएंडर की चटनी या जूस दें थायराइड लेवल्स आपके नॉर्मलाइज हो जाएंगे। हाइपरटेंशन का देखिए जो लो सोडियम फूड्स हैं उनके हिसाब से आई थिंक इफ यू वांट टू प्लान एनीबॉडीज डाइट तो उनका जो डिजीज है उसमें जो चीजें उनके लिए हानिकारक है पहले उनकी आप अपने हिसाब से लिस्ट डाउन कर दो, एंड जो चीजें उनके लिए बेनिफिटेड है फर्स्ट यू रिमूव दोस ingredients, check it with the blood group उनके लिए क्या सूट होता है, and only then you can give it to them. As a dietitian I do this if I want to suggest anybody about the with the blood group diet. यहाँ पे आप देखेंगे हमेशा अभी जब हम blood group के बारे में बात करते हैं ऑलवेज सीन कैन पीपल आर मोर वरीड कि अगर हम दूध नहीं अलाउ करते हैं so what next. I think this is because we are in the Indian culture and दूध is always associated with चाय। तो हमारा जो फर्स्ट वेकअप चीज होता है अगर वही डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारा कैसे चलेगा। दैट इज आई थिंक हमेशा बार बार डॉक्टर उमेश या जो भी दूसरे भी जन हैं ये क्वेरीज डालते हैं, बिकॉज बीइंग अ कंसल्टेंट आई नो व्हेन एनीथिंग इज नॉट अलाउड इन योर ईटिंग पैटर्न इट डिस्टर्ब्स योर मेंटल हार्मनी, आप वो फोकस ही नहीं कर पाते हो। सो जब भी आप ब्लड ग्रुप डाइट दो please keep the yellow chart for yourself to refer and show only the white chart to the client, ताकि आप पहले उसकी मेंटल हीलिंग करो, उसको पहले बताओ ये चीजें आपको ज्यादा खानी है। हमेशा I've seen कि ब्लड ग्रुप डाइट्स में हम फर्स्ट क्वेश्चन ये डालते हैं कि अरे ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है तो क्या खाना है। इट इज बिकॉज when you want to put an approach with the negative eating patterns your body will never accept the positive eating pattern, so that is the reason you cannot मतलब when you want to prescribe, जब आपको ये किसी अगले इंसान को देना है तो you have to first understand and only look at the foods that is allowed for the blood group. Only then you will be able to look at the person with the disease management, उसकी disease कैसे समझ सकती है, सुधर सकती है। अब इसका जैसे multiple डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, तो पहले तो हम एज अ प्रैक्टिशनर हम देखेंगे कि इसको थायराइड में क्या क्या खाना चाहिए। जैसे आई नो अ पेशेंट इज हैज टू ईट flax seeds in thyroid, I give them good amount of flax seeds, sesame seeds, ये सारी देनी होती हैं। तो
अगर मैं इनका देखूं तो इनको फ्लैक्सीड मना है, सीसेम मना है. Can you all see that? I hope you all are connecting to what I'm saying. Yes, doctor. Anybody? हाँ, तो अगर मैं Yes, देखूं तो doctor. ये दोनों चीजें तो इनको मना है, तो फिर मैं क्या करूं? तो डेफिनेटली द सेम टाइप्स ऑफ elements are present for thyroid people in green coriander leaves. ठीक है, I can give them green coriander leaves, I can give them सूखा धनिया. तो ये हुआ मेरा थायराइड का. अब जैसे फ्रूट्स के लिए आ गए या डायबिटीज के लिए आ गए, अगर मैं मिलेट्स में देखूं या इनके जो आटे इनको यूज करने हैं मैडम, हाँ, ब्रेड और मिलेट मतलब बाजरा, चावल, बकव्हीट मतलब ज्वार, बार्ली, ये सारी चीजें इनको अलाउड है. सो वी कैन फोकस ऑन दैट. सो दैट इज गुड आल्सो फॉर डायबिटीज. फिर जब हम नेक्स्ट इनका क्या था, हाइपरटेंशन था, राइट? तो हाइपरटेंशन में इनको जो सोडियम, या एनीबॉडी इन बिटवीन, एनी क्वेश्चन? ओके, तो अभी जैसे इनका हाइपरटेंशन, there's a disturbance behind. 1 second. हाँ मैडम बोलिए. ओके, सो अगर हम इनका हाइपरटेंशन, या कैन यू ऑल हियर मी? Yes, we can. Okay, so the next topic that I was taking कि hypertension में what are the foods to be avoided. तो अगर हम देखें तो हाई सोडियम फूड है जो हमको नहीं खाना है. तो इसमें जैसे पिकल्स हुए, पैकेज फूड्स हुए, मीट हुए, तो वो अगर हम इनके ब्लड ग्रुप के हिसाब से देखें, मैम कैन वी जस्ट स्क्रॉल अ लिटिल लो? Yes. ओके, सो Here it is, यहाँ पे या तो इनके जो ये लैम्प वगैरह हैं, आई थिंक वहां पे आपका पॉइंटर है इसलिए मुझे एज नहीं दिख रहा. एनीवेज, एवरीबडी हैज द चार्ट आउट विद देमसेल्व्स. सो दिस इज द वे हाउ यू शुड प्लान अ ब्लड ग्रुप डाइट. नॉर्मली हम खाली डूज एंड डोंट्स देख के हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब पेशेंट को दें क्या. सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू प्लान अ पेशेंट्स डाइट. नेगेटिव ऑरा में नहीं लेके जाना है. पहले उनके डिजीज को आप समझें, उनके रेस्ट्रिक्शंस को आप समझें, और उसके बाद उनके लिए एक प्लान बनाएं. अगर मैंने इस वक्त इनके 4 डिजीजेस थे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड एंड जॉइंट, अगर मैंने डायरेक्ट आपको ओ ब्लड ग्रुप से दिखाया होता, so even I would have been confused कि ये बंदे को दें क्या. This person will be not being able to have बस डायबिटीज में दालचीनी बहुत अच्छी है, अरे सिनेमन तो इसकी बंद हो गई. अगर मैं अगली चीजें देखूं तो इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अगर हम डायबिटिक को रोज रात को इमली का पानी देते हैं, वी ऑल्सो कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल्स. तो ये चीजें हो गई. बट इफ आई लुक एट द येलो चार्ट, डेफिनेटली माई ब्रेन विल गो इन द नेगेटिव पार्ट. बट इफ आई लुक एट द व्हाइट चार्ट, I will be creating more options for them. This is how normally you should plan a blood group diet. If there are any questions, you all can please come up. Otherwise, I'm done for the topic. Questions है कुछ? Any questions? I want to just add in this case. Yeah. इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं पता चला है किसी, I don't know whose case it is. तो एक कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर पता चलता है तो थोड़ा ऑयल में एंड जो ये चीज वगैरह जो लिखा है. See, that doesn't matter, उमेश जी, that doesn't matter because already उनको जो issues चल रहे हैं, diabetes itself covers your cholesterol. अगर आपको diabetes है, आपको hypertension है, तो definitely आपका oil and spice intake as a consultant आपने कम ही करना है. See, हम जो ये drugless module कर रहे हैं ना, in this we are doing multiple treatments as we as Kohar has always been introduced कि हम एक therapist for many diseases. तो इसमें चाहे आप कोलेस्ट्रॉल करवाओ, चाहे आप उसका बाकी के भी pathological test करवाओ, the treatment is simple. The treatment is through food. Am I right? Yes. So everything has to be taken care. इसमें अगर आपने कोलेस्ट्रॉल भी ऐड कर दिया तो आई थिंक कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दे आर ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. और इस चीज में हमने हमेशा ही कार्ब्स, फैट्स एंड स्पाइसेस, ये तीनों चीजों का अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आपकी ये तीनों बीमारियों का यही एक मिडवे है.
Okay, I hope there are no other questions. any questions besides this? किसी और को Excuse me, ma'am. Yeah. Excuse me. Yeah, Richa. Ma'am, yeah, ma'am, let's take positive blood group. We are not supposed to give the milk products, right? Not allowed. And what are allowed? But ma'am, if we take the cases like diabetes है, hypothyroidism है, ma'am, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये food allowed है या नहीं है? अगर हम उनकी प्रॉब्लम वाइज देखते हैं तो किस तरह से फूड उनको बताएंगे मैम? या रिचा, डेफिनेटली अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये मैं सबको बोलूंगी, स्पेशली ये जो स्किल है अलाउड. yes, I do understand. That we can understand. But diabetes, thyroid, yes, बहुत सारे that's what conditions हैं मैम. I उसमें किस totally तरह का food agree. allowed करेंगे? I totally That we are not agree. aware. Yes, you all are not aware because definitely the expertise is only a nutritionist or a dietitian who knows this. तो आप में यही हिच आएगा. So Yes. जितना ज्यादा आप ऐसे trainings attend करेंगे या हमारे जो paid sessions है जहाँ हम case studies, I and Meenal madam are in future also planning to take up, because only knowing the food group diet, blood group diet is not going to help you, because every patient wants a variety, ठीक है, and they want or उनका जो मेन्यू प्लानिंग है इतना चैलेंजिंग रहता है जब हम ब्लड ग्रुप डाइट से जाते हैं, बिकॉज I as a clinical nutritionist I cannot always give everybody a blood group diet. So because ये knowledge मेरे पास था, I helped you all कि एक blood group diet कैसे आप plan कर सकते हो. So I think for this I don't know if Meenal madam, if you would agree, we should take up more live cases. Yes, like yes, that, so yes. We will be because- taking all live cases only, so that they Because- connect. because क्या होता है ना, when you are prescribing any food changes, the best person and the most qualified contendent person is a Excuse me, dietitian or ma'am. a nutritionist. Yes, tell me, Richa. Tell me, Richa. Ma'am, is it possible to provide us a list of? Is it possible to provide a list of those which are allowed to be taken in the conditions like diabetes, thyroid, all these things? Is it possible to get that list? See, It is there in distribution file. No. She wants disease wise. She doesn't want blood group. Am I right, Okay. Richa? Disease wise. हाँ. Yeah, I See, want disease yes, wise ma'am, तो definitely. see disease wise तो ऐसे आप Google खोलेंगे तो आपको बहुत knowledge आ जाएगा. But we are actually into this practice and in the study from many years, इसलिए हमारे लिए बहुत easy हो जाता है इसको correlate करने के लिए. बाकी अगर आप चाहो तो आप surf करके या you can read good books on Dr. Vishwaroop के बहुत अच्छे books हैं जो आप read कर सकते हैं. You can upgrade your knowledge too. But you know, just by reading, it wouldn't really help unless and until you don't have live cases जहाँ पे आप actually current scenario के साथ काम कर जाओ. Okay, ma'am. But as I said, blood group diet is a very challenging thing when you want to show it to your patient. For that, you should have a backup knowledge ताकि आप पहले समझ लो और जब आप present कर रहे हो, being a therapist, if you are going to present it, you should be more positive and you should be more capable of giving them right options rather than restrictions. Because जहाँ as a consultant, let me tell you all, everybody over here, जब restrictions आता है तो longevity खत्म हो जाती है. जैसे कि अगर हम देखें तो डायटिशियंस के पास ज्यादा लोग इसलिए नहीं रुकते बिकॉज वी ऑलवेज टेल देम डाइट करना है एंड डाइट इज अ शॉर्ट टर्म वर्ड, ठीक है. बट इफ आई से ईट वेल, ईट, सो ईट इज लाइक फ्रॉम द लाइफ टिल द डेथ, इट इज अ कॉमन एंड अ नॉर्मल फिनोमिनन. बट जहाँ रेस्ट्रिक्शंस आती हैं तो एवरीबडी हैज द माइंडसेट, यार ये कब खत्म होगा. सो ये कब खत्म होने वाला एटीट्यूड को पहले हमने समझना है एंड उनको ऐसे बताना है कि ये आपकी लाइफस्टाइल है, इसको हम जब भी कैरी आउट करेंगे वी विल ऑलवेज बी इन द वेलनेस फ्रेम, नॉट इन द इलनेस फ्रेम. I think we are done for the day, Meenal madam. Yes, we are done. So any more things we will be discussing tomorrow, any more further questions, and a recap will also be taken tomorrow. Till the time I'll just share. We are also going to come up with clinical assessments of cases. Yes. I wanted to just inform you all, we have not decided any dates, but if anybody is interested can get in touch with us, whereas Yes. we are going to only talk about nutrition and disease. Nothing else besides that will be covered in that topic too. Okay.
It will And be they will- more. It will be more as a therapist aspect. What we want to take it ahead to cure our patients. Yeah, Dr. Sona, right? Yes, yes. It will be most clinically nutrition and only in relevance with food. Basically, Yes. with food. Yes. Thank you, It will Dr. be a Sona. paid session. Yeah, thank you so much, everybody. It And will see be you all paid tomorrow. session. It will be a paid session. We will be announcing the date soon too. Yeah. Those who are interested, please let us know in the groups itself, so that accordingly we prepare the list of the participant and we start working on it and start interacting with you all in a different groups. Definitely, we will take up live cases from your end only. Yeah. Thank you so Thank much. you. I think Thank you. Have a nice day. May God see you all bless you all. tomorrow. See you tomorrow. कोहार हेल्थ सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।